The Standard College. Connect with the network of success. Pride of the Standard College. The Standard Girls College, a trusted name for the bright future of your child. Admission open. MSc IT, MSc Zoology, Mathematics, Physics, Mass Communication, MCom, MBA, MA English, Islamic Studies, Education, Economics, BS Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, BS Information Technology, Computer Science, English, Economics, Fine Arts, BSc, BA, BCom. The Standard Girls College, Paris Road, Boys Campus, Circular Road, Hajipura Campus, Hajipura Road. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 5 of SSP 1 MSc Physics Part 1. In this lecture, we will discuss the density of modes in 3 dimension along with determination of reciprocal vectors from direct basic vectors and equivalence of Bragg-Swan law formulations. So first of all, we talk about the density of modes in 3 dimensions. For discussing the density of modes in 3 dimensions, the outlines are as follows. First of all, we have the knowledge of density of modes. What is density of modes? Actually, density of modes is the number of modes within the range. And here range we have considered K space and K vector, and range is K. So that means density of modes is the number of the modes within the range K. And next one is number of states, that is represented by D of K, and that is defined as the number of states per unit range of K. It is also called states density. And next is the periodicity or periodic property of the lattice. We are familiar with the periodic lattice in 1D, that is we have to discuss in the lecture 2. And formula of periodicity, U is a function of n of A plus L, that is equal to U n of A. That means that is similar to as a sine wave function repeat after an equal interval of angle. Similarly, these functions repeat himself after a length L, unit length, unit dimensions. The next is a 1D case and 3D case. That means their functions. In 3D case, function is given by U is a function of n into r vector plus L vector, that is equal to U n of r. Here small r is a position vector having 3 components, and capital L is a angular momentum vector which having 3 components, Lx component, Ly component, Lz component. Because here we are discussing a cube, we are taking a cube of each side length is a capital L. Then we will find the solution of 3D case by substituting the values of U of n, r plus L and U n of r in the form of traveling waves. And simplifying this one, and we will reach at a result value of kx, ky and kz as follows. Kx is given by 0 plus minus 2 pi by L plus minus 4 pi by L plus minus 6 pi by L, and similarly ky and kz. They are symmetrical because we have considered the cubic case. So we first of all go to depth, density of modes in 3 dimension. For discussing the density of modes in 3 dimensions, we have discussed here
कि डेंसिटी ऑफ मोड्स जो है इसमें आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब क्या है। डेंसिटी ऑफ मोड्स नंबर ऑफ मोड्स in range k, and density of state is the number of states per unit range k, and due to the periodic property of the lattice we can write for one dimensional case u of n a plus. There is some screen sharing issue. तो वो हम बात कर रहे थे कि डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या है, कि इसमें डेंसिटी ऑफ मोड्स के अंदर हम वन डायमेंशनल केस फंक्शन देखें, पीरियोडिक फंक्शन देखें जो एक यूनिट लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, यू ऑफ एन ए प्लस एल दैट इज इक्वल टू यू एन ऑफ ए। यानी कि जैसे आपके पास साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, वो अपने आप को रिपीट करते हैं ना एक खास वैल्यू के बाद, जैसे 2 पाई के बाद 90 एंगल के बाद वो अपने आप को रिपीट करती है वेव। सिमिलरली ये फंक्शन जो है यूनिट लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इसलिए इनमें पेरियोडिसिटी पाई जाती है। ये वन डायमेंशनल के लिए है, यहाँ पे n जो है एक नंबर है और a जो है लेटिस पैरामीटर है और कैपिटल L जो है एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन जब 3D के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे a की बजाय हम कैपिटल स्मॉल r लिखेंगे, वो पोजीशन वेक्टर होगा जिसमें x, y और z 3 डायमेंशन होंगी, और L जो है वो उसकी भी 3, ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, वो जो है 3D में होगा और उसके 3 कंपोनेंट होंगे, LX भी होगा, LY भी होगा, LZ भी, और यहाँ पे n फिर आ जाएगा और यहाँ a की बजाय r आएगा। As we will see in the next slide। ये देखें स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फॉर 3D के लिए जो है UNR प्लस कैपिटल L, और यहाँ पे ये जो R है, ये जो L है, ये आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, LX I यूनिट वेक्टर प्लस LY J यूनिट वेक्टर प्लस LG K यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे जो R है सिमिलरली उसको भी लिखें तो वो भी एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, X इंटू I यूनिट वेक्टर, Y इंटू J यूनिट वेक्टर एंड Z इंटू K यूनिट वेक्टर होंगे। तो सोल्यूशन हमें निकालना फर्स्ट इक्वेशन का इसका ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमने वैल्यूज प्लग की इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, a इंटू ई की पावर एटा ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे वैसे हम माइनस लगाते होते हैं ओमेगा टी, ठीक है, के टी, और यहाँ पे क्योंकि ये n प्लस एल भी है तो वैसे तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि ओमेगा टी माइनस के टी, ओमेगा टी इंटू के डॉट आर होता है, या के एक्स आता है वन डायमेंशन केस के लिए ना, के डॉट एक्स आता है, क्योंकि यहाँ पे 3D है और उसमें ये पूरी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये पूरी लेफ्ट साइड पे ना एन ऑफ आर प्लस एल पुट करेंगे, तो उसमें से एन ऑफ आर अलहदा कर लिया और जो एल वाला फैक्टर है वो अलहदा कर लिया, क्योंकि ओटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाकी में इस सूत्र है हमने यहाँ पे दो पोर्शन अलहदा अलहदा कर लिया, राइट साइड पे ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ए और ए कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये फैक्टर हमने इसलिए अलहदा कर लिया था, अब ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो गए, तो ई की पावर एटा के डॉट एल इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खत्म करते हैं, या फिर हम इसकी तीनों कंपोनेंट लिख लेते हैं, के डॉट एल निकाल लेते हैं, के डॉट एल किसके इक्वल आएगा, के एक्स एल एक्स के वाई एल वाई के वाई, यानी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपने लगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लगा लेना, तो वहां से फिर आपके पास ये अलग अलग हो जाएंगे। एंड दिस इज ओनली ट्रू, ये उस वक्त ट्रू होगा कि जब आपके पास, अब देखें एक्सपोनेंशियल को जब हम खत्म करेंगे दोनों तरफ का लॉग लेंगे, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया तो ln e 1 हो जाता है, तो बाकी ये कंपोनेंट्स उसी तरह से आ जाएंगे। लेकिन राइट साइड पे ln 1 0 होता है, इसलिए वो 0 आ गया। अब हमारे पास ये 0 कब आता है या ये 1 कब आती हैं वैल्यूज, ये जब आपके पास एंगल जो है वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो एंड सो ऑन, ठीक है, उस वक्त ये सूरत होती है। अब जब मुझे के एक्स के वाई और के जी निकालने हैं तो ये एल उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, देख रहे हैं
के एक्स के वाई, तो ये राइट साइड के मेंबर्स हैं, राइट साइड के एलिमेंट्स हैं, तो ये एल उधर जाके इनको डिवाइड कर देगा। तो हमने यहाँ से क्या नतीजा निकाला, के एक्स की वैल्यूज से हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन क्या आ गया, के एक्स की वैल्यू 0 हो सकती हैं, प्लस माइनस 2 पाई बाई एल हो सकती हैं, प्लस माइनस 4 पाई बाई एल हो सकती हैं, प्लस माइनस 6 पाई बाई एल हो सकती हैं, यानी इवन मल्टीपल हैं ये। इतनी लेंथ के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा फंक्शन। इसी तरह के वाई की भी यही वैल्यू होगी, क्योंकि क्यूब लिया हुआ है ना, क्यूबिकल। तो ये इसका इक्वेशन नंबर 2, इसका सोल्यूशन आ गया। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो, यानी ट्रैवलिंग वेव का जो है आइडिया वो यूज किया है यहाँ पे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास, ये पीरियोडिक फंक्शन, इसका सोल्यूशन हमने क्या कंसीडर किया है, दैट हैव ट्रैवलिंग वेव सोल्यूशन। तो फिर वो सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, अलग कर लिया पोर्शन इसमें से, ये दोनों कैंसिल करके तो सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पे। तो अब फर्दर इसको हमने एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए लेट अस कंसीडर एक केस स्पेस हमने कंसीडर कर ली। तो आप इस केस स्पेस के अंदर देख रहे हैं कि ये जो केस स्पेस है, इसमें हर पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ के को, यानी वेव वेक्टर के को। यानी ये केस स्पेस इस तरह से है, 3D में है, के एक्स वैल्यू भी है इसकी, के वाई भी है और के जी भी है। Actually, we see that all values of k are not physically significant. Physically significant values are resulted by the equation 2. Equation 2 जो है वो physical values बता रहा है k x, k y और k z की, and they are periodic points and are period of 2 pi by l. इनमें जो period है वो 2 pi by l का ऐड होता जा रहा है हर एक वैल्यू पे। कोई दो वैल्यू के दरमियान वक्फा कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 pi by l का। अब इसके बाद जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम स्पेसिफाई किया हुआ है हमने 2 पाई बाई एल से। वो उस तरह लिहाज से 2 पाई बाई एल एक साइड पे, 2 पाई बाई एल एक साइड पे, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या बन गया, तो ये तीनों लेंथ मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास 2 पाई बाई एल का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इस केस स्पेस का, इस सारी केस स्पेस का वो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 2 पाई बाई एक साइड की है, तो 2 पाई बाई एल का क्यूब आ गया। सिंस वी आर कंसिडरिंग द के स्पेसिंग, क्यूब हमने कंसिडर किया हुआ ना, क्यूबिकल पोर्शन कंसिडर किया हुआ हमने, क्यूब कंसिडर किया ना, मतलब यहाँ लिखने में तो 2D में दिखाई देगा, लेकिन ये क्यूब है। और जो वॉल्यूम के स्पेस का होगा वो 2 पाई बाई, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 2 पाई बाई क्यूब आ गया, 2 पाई बाई एल क्यूब आ गया। और नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इक्वल टू 1, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 1 है। यूनिटरी मेथड लगाएं तो इन यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये यूनिटरी मेथड से आ गया ना, 100 किताबें मतलब 10 किताबों की कीमत 100 रुपया है, तो एक किताब की कीमत क्या होगी, या फिर फर्ज करें 100 किताबों की कीमत 1 रुपया है, तो एक की कितनी होगी, वो तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू तो जाकर डिवाइड होगी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो L ओवर 2 पाई क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आई है, नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा और है इक्वेशंस का, लेट अस कंसीडर कर लें कि स्फेरिकल शेल इन के स्पेस, शेल जो है हमारा स्फेरिकल है और उसका रेडियस के है, और थिकनेस ऑफ स्फेरिकल शेल वो भी के है। ये थोड़ी सी सपोजिशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे स्फेरिकल शेल लिया के स्पेस के अंदर, और उसकी थिकनेस जो है वो डी के है और रेडियस के है। तो फिर नंबर ऑफ स्टेट्स के शेल में क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होंगी वॉल्यूम ऑफ के शेल ओवर वॉल्यूम ऑफ के स्पेस। और वॉल्यूम यहाँ पे 4 पाई के स्क्वायर डी के है,
और जो वॉल्यूम ऑफ के स्पेस है वो 2 पाई बाई एल क्यूब है। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब आ गया ना, कैंसिल करने के बाद नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या आएंगी हमारे पास। ये सिंप्लीफाई करना है तो आप कर लेना इसको। तो नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है जी एफ के डी के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर डी के और एल क्यूब 2 पाई और एल क्यूब। एल क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई जो है वो 1 पाई कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद के स्क्वायर डी के ओवर 2 पाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन द यूनिट रेंज क्या आ गए, डी ओमेगा आ जाएंगी। ठीक है, इसको आगे स्लाइड में हमने स्टेल से लिखा हुआ है। Let us consider spherical case space having thickness of spherical shell, यानी थिकनेस डी के है और रेडियस के है। तो आप जानते हैं कि स्फीयर का जो है फिर क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर साथ जो थीटा होता है 4 पाई आर स्क्वायर थीटा होता है इसका वॉल्यूम। स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे थीटा की जगह डी के है और आर स्क्वायर की जगह के स्क्वायर है, बाकी ये वही चीज। एक वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, एक आकोपाई वॉल्यूम आ गया, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये देखें तो नंबर ऑफ स्टेट्स तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल जो है उसको कैलकुलेट कर लें। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज 4 पाई के स्क्वायर डी के हमने लिखा है प्रीवियस स्लाइड में। तो 10 द नंबर ऑफ स्टेट्स इन स्फेरिकल शेल कितनी होगी, ये नंबर ऑफ स्टेट्स इन स्फेरिकल शेल 4 पाई के स्क्वायर डी के और वॉल्यूम। ये ऊपर जो हमने लिखा ना ये वॉल्यूम जो है ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ के शेल है और ये वॉल्यूम ऑफ के स्पेस है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ के शेल और वॉल्यूम ऑफ के स्पेस। नो नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगी जी एफ के डी एफ के। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट की हैं, यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, होल वॉल्यूम एल क्यूब होगा उसका। तो जो ये वैल्यू आई थी ना सारे को एल क्यूब से हमने डिवाइड कर दिया, उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे हमने ये क्यूब ओपन किया तो एल क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ 8 पाई क्यूब आ गया। तो 4 2 are 8 और ये पाई स्क्वायर है, अगर तो जो भी ये पाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि नहीं पाई है ये, तो पाई क्यूब से कैंसिल होने के बाद पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 खत्म हो गया, वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से। अब नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूनिट रेंज डी ओमेगा देखते हैं। एक रेंज के अंदर हमने देखनी है, एक थिकनेस के अंदर। तो नंबर ऑफ स्टेट्स को जब डी ओमेगा के अंदर देखते हैं, वैसे जो कॉन्टिन्यूस मीडियम होता है ना, कॉन्टिन्यूस मीडियम, उसके अंदर जो वेव की इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी के, यानी आम रिलेशन है ये किस किस के दरमियान, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेव वेक्टर के। ये वेव वेक्टर के है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, यानी इसको डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूस मीडियम के अंदर जनरल रिलेशन है। अब हमने तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मोड्स के लिहाज से रिलेशन देखनी है ना, तो वो देखें आप, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स इन द रेंज डी ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू ये जी ओमेगा, ठीक है, और डी ओमेगा ये इसके इक्वल होते हैं नंबर स्टेट्स। तो यहाँ पे ये चीज तो चले ऐसे ही आ गई नीचे, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, के स्क्वायर डी के और 2 पाई स्क्वायर, ये वही वैल्यू लिखी है। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं
तो ये हमारे पास जो आया था के स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर डी के आया है। तो डी के की वैल्यू आप लगा सकते हैं, जो मैंने कंटिन्यूस मीडियम के लिए जनरल इक्वेशन लिखी है ना, वहां से आप वैल्यू लगा लें। ये जो इक्वेशन लिखी है इसके दोनों तरफ का डिफरेंशियल है ना, तो डी मेगा इज इक्वल टू वी कांस्टेंट है डी के आ जाएगा। तो यहाँ से डी के क्या आ गया, डी मेगा ओवर वी आ गया, वो हमने वैल्यू यहाँ पे लगाई है, डी मेगा ओवर वी। ये जो डी मेगा है इस डी मेगा से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन मेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ओवर वी, एक ये है और एक ये वी, तभी क्यूब हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट रेंज ऑफ ओमेगा के लिए है, पहली क्या थी डी ओमेगा के लिए। तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ रही है, जो क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन गिव्स द नंबर ऑफ द स्टेट्स पर यूनिट रेंज ऑफ ओमेगा। तो यहाँ तक 3 मोड्स के लिए जो है ना 3D में नंबर ऑफ मोड्स हमने निकाली, वो इतने होते हैं। अब हम जो सेकंड पोर्शन है इस लेक्चर का उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पोर्शन आपको पता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने हैं हमने डायरेक्ट बेस वेक्टर से या डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से हमने। And now we are discussing determination of reciprocal vectors from direct basic vectors, यानी कि हम किस तरह से जो हैं वो रेसिप्रोकल वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो रूल्स हैं वो क्या होंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक वेक्टर्स दिए होंगे, ए और बी की वैल्यू दी होगी। इन ए वेक्टर जब आप हैंड राइटिंग में लिखें तो ए के ऊपर एरो लगा लें, बी के ऊपर भी एरो लगा लें, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं। डार्क करता तो वेक्टर आपको पता जाना, ये वेक्टर ए और बी डायरेक्ट बेसिक वेक्टर हैं, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं, ये हमें गिवन होंगे। सी जो है हम अपने पास से खुद ही सपोज कर लेते हैं ये जी यूनिट वेक्टर के बराबर है, और फिर हम ए डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं, ये क्योंकि फार्मूले में आना है। तो फिर हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर के फार्मूलाज से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, वो क्या होते हैं कि वेक्टर ए जो होता है रेसिप्रोकल वेक्टर ए अगर निकालना तो वो किसके बराबर है 2 पाई इंटू बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरह जब आपने बी निकालना तो 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए ओवर, यानी कि ऊपर चेंज होंगी, नीचे ये वैल्यू सब फार्मूला में नीचे वैल्यू आनी है, इसलिए ये वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी ये सबके डिनोमिनेटर में आनी है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय समथिंग। जैसे मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए निकालना है, तो उसमें वेक्टर ए जब निकालना है आपने तो बी क्रॉस सी ओवर ये आना है, 2 पाई साथ मल्टीप्लाई होना है। जब अपना हमने रेसिप्रोकल लैटिस बी निकालना है उस वक्त आपके पास यहाँ पे ए क्रॉस सी होना है या सी क्रॉस ए कह लें, ठीक है, सी क्रॉस ए आ जाएगा और नीचे यही वॉल्यूम आना है। और जब आपने वेक्टर सी निकालना है तो उस वक्त आपके पास ए क्रॉस बी आना है और ओवर यही आना है। तो आगे हम अप्लाई करते हैं उनको, उससे आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये जनरल रूल है। सबसे पहले वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ये देखें आप, एक एग्जाम्पल है इसकी, उसको डिस्कस करते हैं, उससे ही आपको वाज़ेह होगा कि क्या मैंने बताया। क्वेश्चन कोई भी आपको दिया जा सकता है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन 2 dimension द बेसिक वेक्टर्स ऑफ ए रियल लैटिस आर गिवन, ए इज इक्वल टू 3x यूनिट वेक्टर, बी इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर प्लस 2y यूनिट वेक्टर, फाइंड द बेसिक वेक्टर्स ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। और डायग्राम में शो की नहीं है चीजें, ये हम जब ये निकालते हैं ये डायग्राम में आगे शो भी कर देंगे। ये डायग्राम है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट की है, ए वेक्टर और बी हमें दिया हुआ, ये फिर आगे उसके रेसिप्रोकल निकालने हैं, इसके बाद में फिर देखते हैं, पहले कैलकुलेट कर लें। तो टू शो दिस वी सपोज दैट
द थर्ड वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसलिए सी को जो तीसरा वेक्टर है उसको हमने जी लेट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम ए डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे। ये ए की आपने वैल्यू लगा दी 3x यूनिट वेक्टर की है ना हमें ये वैल्यू। फिर उसके बाद बी है, तो बी क्रॉस सी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड है उससे मालूम कर लें आप। या फिलहाल तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया ना, बी क्रॉस सी, ये बी का लिख लिया क्रॉस सी। तो आपने एक डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी हुई इन तीनों की वॉल्यूम निकालने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसको जब अप्लाई किया आपने तो पहले इसके आ जाएंगे हमारे पास एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इतने को सॉल्व करने के लिए है, ये दो को, जैसे ए क्रॉस बी निकालना हो, ये दो को मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट है, सारे के लिए नहीं है। वो बाद में हम 3x शामिल कर लेंगे। एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी, यहाँ आई जे के भी लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आए, इसका 1, ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर के साथ, वाई के साथ 2 है, और तीसरा क्योंकि इसमें नहीं है उसकी जगह 0 लिख लिया। और जो दूसरे वेक्टर के आप देख रहे हैं इसमें x भी नहीं है 0 आ जाएगा, इसमें y भी नहीं है 0 आ जाएगा, और z बस है उसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 आ गया। जब हम इसको फर्स्ट रो से ओपन करते हैं, ये इतना जो है ना, इतना ये साथ इधर भी हमें लिखना चाहिए था, इधर मिसिंग है, फिर नीचे ये लिख लिया, यहाँ पे मौजूद है तो आगे लिखा है ना, ये जरा देख लीजिएगा। इस सारे को हल करके ना हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट करें ओपन करते हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 इससे, तो यानी y यूनिट वेक्टर इंटू माइनस ये 2 आ जाएगा हमारा, x यूनिट वेक्टर आएगा ना, तो ये डिटर्मिनेंट उसके साथ लिखा जाएगा इतना 2 0 0 1। उसको सॉल्व किया तो वहां से 2 आ गया। जब आप y के लिहाज से लिखेंगे y आ जाएगा, तो ये छोड़नी है कॉलम को और इस रो को भी छोड़ना है, तो 1 0 0 1 आ जाना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद -1 आ जाएगा, ठीक है। इधर -1 स्टार्ट में आता है ना, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब तीसरे इस रो के इस मेंबर को आप रखेंगे तो इसके लिए ये भी छोड़ना पड़ेगा और ये रो भी, तो 1 2 और 0 0, तो यहाँ से तो 0 ही आंसर आएगा। इनको सिंप्लीफाई किया तो 2x यूनिट वेक्टर और y यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। तो ये हमने क्या कल कर लिया, a डॉट b क्रॉस c, ये सब में यूज होना है आगे, देखिएगा। ये फार्मूले हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना हो तो उसके ये फार्मूला है। ये रेसिप्रोकल वेक्टर a है निकालने के लिए, स्मॉल a जो है डायरेक्ट का था, ये रेसिप्रोकल का है, तो ये किसके इक्वल है 2 पाई b क्रॉस c ओवर a डॉट b क्रॉस c। अब a डॉट b क्रॉस c का हम आंसर पहले निकाल चुके हैं, 2 पाई हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये b क्रॉस c हमने निकालना, b क्रॉस c भी हम प्रीवियस में निकाला है हमने, ये देखें, ये सारा b क्रॉस c तो था, ये इतना हिस्सा इधर भी लिखा हुआ है, फिर ये सारा लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर 2x यूनिट वेक्टर माइनस y आ गया, ये b क्रॉस c का आंसर है, ठीक है। एक बात यहाँ पे बतानी थी कि ये डॉट है, ठीक है। ये डॉट को जब हमने खत्म किया ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा सॉल्व होना था ये। अब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ लेना है, तो x डॉट x की जगह तो 1 आ गया, तो जब x डॉट y आना तो ये 0 हो जाना, ये फैक्टर खत्म। तो यहाँ से x डॉट x का 1, ये 2 3 6, यहाँ से 6 आंसर आया हुआ है हमारे पास पहले ही, वो जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर 2 पाई हमने वैसे ही लिखा, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका आंसर 6 आया हुआ है, और b क्रॉस c का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं 2x यूनिट वेक्टर माइनस y यूनिट वेक्टर। इसी तरह ये इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई x यूनिट वेक्टर ओवर 6 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 पाई y यूनिट वेक्टर ओवर हमारे पास 6 आ गया। यहाँ पे ये कैंसिल किया हुआ है ना, 2 1 2 एंड 3, इसलिए यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। अब जब आपने b रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है, उसका फार्मूला 2 पाई c क्रॉस a ओवर दिस 1 है। अब 2 पाई तो वैसे ही आ गया, a डॉट b क्रॉस c का आंसर 6 निकाल चुके हैं प्रीवियस हम जो है स्लाइड के अंदर। बाकी ये बात रही c क्रॉस a, तो c क्रॉस a को आपने हल करना है जिस तरह से मैंने b क्रॉस c को किया है। उसके लिए i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर लिखने के बाद, यानी x यूनिट वेक्टर, y यूनिट वेक्टर
और z यूनिट वेक्टर लिखने के बाद फर्स्ट वेक्टर जो है आपका यहाँ पे कौन सा है, c है, तो c का x कंपोनेंट भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ पे जो तीसरा है उस पर 1 लगेगा। फिर a के आप लिख लें, उसको सिंप्लीफाई करें तो 3y यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 से कैंसिल, तो पाई y आ गया। ठीक है, 3 1 3 3 2 6, यहाँ 2 3 6 और 6 6 से कैंसिल हो गए तो पाई y आ गया। अब आपने c निकालना है, तो c यूनिट वेक्टर जब आपने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है उसका फार्मूला फिर इसी तरह से 2 पाई a क्रॉस b आएगा, उसमें a डॉट b क्रॉस c आ गया। 2 पाई वैसे ही आ गया। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के हिस्से का आंसर 6 होता है, आपको पता है। a क्रॉस b आप फिर डिटर्मिनेंट से निकाल लेंगे तो वो आपके पास 6z यूनिट वेक्टर आ जाता है। 6z यूनिट वेक्टर कैसे आता है, आपको पता है कि पहले x यूनिट वेक्टर, y यूनिट वेक्टर और j लिखेंगे, k लिखेंगे और a के कोफिशिएंट लिखेंगे पहली रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर, और तीसरी रो के अंदर आप b के लिखेंगे। उनको सॉल्व करेंगे, वहां से 6z आएगा। ये 6 6 से कैंसिल हो गया तो 2 पाई z आपके पास आ गया। अब आप इन कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करते हैं, आप देखते हैं कि a का आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a वेक्टर का आंसर आया। ठीक है, इसी तरह ये b का आया और ये c का आया। तो c वाले को देखें तो हमने c लेट क्या किया था, z यूनिट वेक्टर, बस जस्ट उसके साथ कौन सी एक चीज इजाफी आ गई, 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई। तो ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कंपेयर द सपोज्ड वैल्यू ऑफ c एंड द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ c। तो इससे हम नतीजा निकालते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर c जो है वो रिमेन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो अगर हमने इसको पैरेलल टू दी z एक्सिस के, बट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय 2 पाई एंड द टू टाइप्स ऑफ लैटिस आर शोन इन द नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, तो इनको जब हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं c जो हमने लेट किया था z के, वो तकरीबन उसी के इक्वल है, बस 2 पाई उसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया है, और कोई चीज नहीं है। अब डायग्राम देख लें लैटिस वेक्टर्स के लिए हमने बनाई है, ये डायरेक्ट के लिए है और ये जो हमने इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाले हैं ये उनकी है। तो ये देखो थोड़ी सी रिप्लेस हुई है, ये इस तरफ को था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे आ गया। तो ये दूसरा टॉपिक था हमारा, उसके रिलेटेड ये रिलेट कर रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मेथड भी बता दिया और एक एग्जांपल से आपको समझा भी दिए। डायग्राम पूछी हो तो बना ले, वरना जरूरी नहीं है। अब इसी लेक्चर का जो तीसरा हिस्सा था वो क्या था, वो हमारे पास कंपैरिजन था। किस किस के दरमियान कंपैरिजन था हमारे पास, इक्वलेंस ऑफ ब्रेग्स एंड वैन लाउ फॉर्मुलेशन। यहाँ पे एंड लिखना चाहिए था, ठीक है, एंड मिसिंग है, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड लिख लिया। तो अच्छा, इसकी आउटलाइन क्या है, इक्वलेंस ऑफ ब्रेग्स लॉ एंड वैन लाउ फॉर्मुलेशन, इसमें क्या चीजें हमने करनी है। इसमें कुछ हमें सपोजिशन करनी है। यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है के से, के वेव वेक्टर ऊपर लिख लेना, इसके ऊपर वेक्टर का साइन डाल लें, और स्कैटर्ड वेव वेक्टर को के डैश से जाहिर कर लिया। ये दोनों स्मॉल लेटर यूज कर लिए, और जो इनका रेसिप्रोकल वेव वेक्टर है उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करिए। लाउ ने क्या कंडीशन की थी, प्रूफ ने कहा था कि के जो होता है, यानी जो रेसिप्रोकल वेव वेक्टर है वो बराबर होता है स्कैटर्ड वेव वेक्टर माइनस इंसिडेंट वेव वेक्टर। यानी कि अगर हेड टू टेल रूल से जो ये दो वेक्टर हैं, जो रेसिप्रोकल वेक्टर है और इसके अलावा इंसिडेंट वेक्टर ऐड होके, तो वो हमें स्कैटर्ड वेव वेक्टर देते हैं। ये अगर डायग्राम में दिखाई हुई है ये चीज, ये डायग्राम में देखो, ये इंसिडेंट के वेव वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास स्कैटर्ड आ गया, ठीक है। तो ये हमने जो है इससे वो रेसिप्रोकल वेक्टर को शो किया हुआ है। तो अगर हेड टू टेल रूल से देखा जाए, एक ये हमारे पास वेक्टर है, एक ये है, ये उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इस वेक्टर में उठा के उस वेक्टर को यहाँ पे ऐड कर लिया जाए,
तो उस लिहाज से इस चीज को दिखाया गया है कि ये के जो है ये स्कैटर्ड वेव वेक्टर, मेरा कहने का मतलब ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है, ये स्कैटर्ड वेव वेक्टर है, और जो इसका रिजल्टेंट है वो यहाँ पे हमने शो कर लिया, दैट इज के। और ये इक्वलेंस दिखाने के लिए ब्रैग्स लॉ के अंदर और लॉस के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन सेम आती है, ये मैथमेटिकली हम देखेंगे किस तरह से सेम आती है। इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमने मैग्नीट्यूड रखी है, जो हमारे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर है उसकी, ये हमने सपोज कर लिया कि इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर, ये जो लॉ कंडीशन आई है ना किस तरह से आई है, हमने सपोज कर लिया हुआ है कि इंसिडेंट वेव वेक्टर जिसको के से लिखा है, यानी ये जो इंसिडेंट वेव वेक्टर के है और के डैश, ये दे हैव सेम वेवलेंथ, इन दोनों की वेवलेंथ क्या है, अगर सेम हो तो फिर इनके एंगल भी सेम होंगे। किसके साथ, जो परपेंडिकुलर प्लेन बन रही हैं विद प्लेन्स परपेंडिकुलर टू के। यानी ये डायग्राम को आप देखें कि ये अगर ये जो वेव वेक्टर है और ये वेव वेक्टर, इनमें सपोजिशन कर ली जाए वेवलेंथ सेम है इन दोनों की, तो फिर इनके ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। और जब ये दोनों सेम होंगे तो ये इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन आती है, यानी कि के, उसकी जो है डायमेंशंस उस वेव वेक्टर की विद वो फिगर में दिखाई गई हैं। अब फिगर से ये भी क्लियर हो रहा है कि स्कैटरिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ब्रैग्स रिफ्लेक्शन को ही शो कर रही होती है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि के जो होता है, यानी कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल वेव वेक्टर है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ के नॉट टू के। और यहाँ पे आगे हम डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं इसकी, ये भाग है ना हमारे पास डिटेल में, इसको देखें। तो यहाँ पे सपोजिशन कर लेते हैं हम, वही चीज जो मैंने आपको बताई है अभी, कि हमने सपोज कर लिया है कि इंसिडेंट वेव जो है वो, सपोज दैट इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव्स आर के एंड के डैश, यानी इंसिडेंट के और के डैश किसको, स्कैटर्ड वेव को शो कर रही है। सेटिस्फाई द लव कंडीशन दैट के इज इक्वल टू के डैश माइनस के, ये कैपिटल के शो कर लिया। ये जो कैपिटल के है ये रेसिप्रोकल वेव वेक्टर शो कर रहा है। सिंस द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव दे हैव द सेम वेवलेंथ, तो फिर सो के एंड के डैश हैव द सेम एंगल, इनके एंगल भी के और के डैश के सेम होंगे। किसके अंदर, विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू के, ये जो के आया ना हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ इन दोनों के जो एंगल हैं वो भी सेम होंगे। Therefore the scattering can be viewed as a Bragg's reflection। तो फिर जो ब्रैग रहा था वो भी इसी तरह था कि इस वजह से ये जो स्कैटरिंग है इसको हम ब्रैग रिफ्लेक्शन ही कंसिडर करते हैं। वहां पे ये जो रिफ्लेक्शन होती है ब्रैग लॉ में, वो रिफ्लेक्शन एक्चुअली स्कैटरिंग के इक्वल ही होती है, क्योंकि वहां पे भी ये इंसिडेंस एंगल और स्कैटर्ड एंगल सेम होते हैं या रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन जो है उनको हम एक ही मानी उनके लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लास्ट टाइम पहले आपको कुछ लेक्चर पढ़ाए थे उसमें बताया भी था, ब्रैग्स लॉ के अंदर जो स्कैटरिंग का वर्ड है और जो रिफ्लेक्शन का वर्ड है वो एक ही माने देता है। वो मैथमेटिकली यहाँ से आपने देख भी ली ये चीज, उसकी वजह क्या है। फर्दर इसकी जो मैथमेटिक्स है उसको देख लेते हैं हम। इसमें आपको बताया फ्रॉम फैमिली ऑफ दी डायरेक्ट लैटिस प्लेन्स
perpendicular to the reciprocal lattice vectors to show that the reflection satisfy the condition. ये reflection इस condition को satisfy करती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर ब्रैग्स लॉ के अंदर 2d sin theta is equal to n lambda, यानी रिफ्लेक्शन की बात है, ब्रैग रिफ्लेक्शन। तो ये स्कैटरिंग भी यही चीज है, स्कैटरिंग से भी ये इक्वेशन को हम देखते हैं। इसके अंदर देखना अब क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पे जो के आ रहा है 2d sin theta and lambda ना, we should keep in mind that wave vector k is an इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि ये जो कैपिटल के है वेक्टर है, यानी कि रेसिप्रोकल वेक्टर है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के नॉट। शॉर्टेस्ट क्या है, ये यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे ये जो हाफ जितना भी इसका इसके मुकाबले बंद है वो के नॉट से प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये के नॉट से के तक इसकी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू बताने की कोशिश की। तो के नॉट की मैग्नीट्यूड भी के ही होगी, तो इसलिए के की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के एंड 2 पाई ओवर डी, ये एन भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 पाई ओवर डी जो है ये के नॉट को प्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे आप ऑसिलेट कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जो होती है, ऑसिलेशंस को सर्कुलर मोशन की फॉर्म में आप देखते हैं तो वहां पे एक्स नॉट आता है, इसी तरह ये मैक्सिमम के नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वेव वेक्टर। तो के नॉट मैनेज के नॉट 2 पाई बाई डी आ गई, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इन द फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। सो वी हैव, यहाँ पे आप देख रहे हैं के इज इक्वल टू 2 पाई एन और डी। तो अब फिर दोबारा इक्वेशन से आपको जो है वो तल्लुक कायम करना पड़ेगा इस सिलसिले में। यहाँ वी शुड कीप इन माइंड दैट वेव वेक्टर के इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल वेक्टर के नॉट टू के। अब आप डायग्राम को अगर फोकस करें तो वहां से देखें कि डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दी सक्सेसिव प्लेन्स इन दी फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर टू दी के आर के डैश, और के की मैग्नीट्यूड 2 पाई एन बाई डी आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 पाई बाई डी आपने क्या पढ़ा है, 2 पाई बाई डी को क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 पाई बाई डी है इसकी वैल्यू ऊपर आप लिख चुके हैं, तो 2 पाई बाई डी की जगह आप के नॉट लिख सकते हैं, के नॉट एक्चुअली के ही है। तो इसलिए उस फिगर को आप अगर फ्रॉम द फिगर देखें तो के इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, इस डायग्राम के अंदर के इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। ये कहाँ से बात हो रही है, ये एक्चुअली ये बात है, ये जो कैपिटल के है ना स्कैटर्ड वेव वेक्टर के टोटल, ये ए सी प्लस सी डी, ये सी ये लिखा हुआ ना, किसके इक्वल है ए सी प्लस सी डी, तो ये ए सी के नॉट लिखा हुआ है ना, बाकी इसलिए के इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये के आ जाएगा कैपिटल के, और ए सी जो है वो के डैश साइन थीटा है। ये अगर ट्राइंगल हम कंसिडर करें ना, तो इसमें ये जो के की वैल्यू है, के डैश की वैल्यू है, यानी ए सी मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो ए सी किसके इक्वल आ रहा है, ये एक्चुअली अगर यहाँ पे 90 का एंगल हो तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये जितना एंगल ये है इतना ही इधर होगा, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, और ये इसके लॉन्ग देखना चाह रहे हैं आप,
तो ये के डैश मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा आएगा। इसलिए इस ट्राइंगल से जो है वो हमने लिखा है के डैश साइन थीटा ए सी की जगह। इस तरह जो सी डी है उसको हम जब देखेंगे तो हमारे पास के साइन थीटा आ जाएगा। तो इन दोनों में आप देखें साइन थीटा कॉमन है। तो क्योंकि स्कैटरिंग इज इलास्टिक, तो जब स्कैटरिंग इलास्टिक होती है तो फिर आपको पता है के डैश और के की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हमने के डैश की जगह के लिख ली है। तो जब आप के डैश की जगह के लिख लेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो स्मॉल केज हैं दोनों, के डैश की जगह भी के लिख लिया, तो ये यहाँ पे भी के साइन थीटा उसको आपने 2 के साइन थीटा लिख लिया। ये कैपिटल के है, यानी ये स्कैटर्ड के लिए हमने यूज किया, सॉरी रेसिप्रोकल वेव वेक्टर के लिए यूज किया, ये लहदा है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर दें के की वैल्यू इस जगह पे, ठीक है, कैपिटल के की वैल्यू। जब यहाँ पे आप ये वैल्यू कैपिटल के की पुट करते हैं तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 के साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे यही चीज सारी 2 पाई बाई डी। तो 2 पाई बाई डी जो है, यहाँ वेव वेक्टर की वैल्यू आप पुट करते हैं, यहाँ पे के की जगह अगर के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो इस के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा लिख दा, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ये डी को इस के की जगह आप लिखें ना, इस के की जगह आप 2 पाई बाई लैम्डा लिखें, तो 2 पाई यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, वो तो कैंसिल हो गए ना दोनों। तो इसके नीचे जो लैम्डा है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो यानी 2 डी साइन थीटा 2 पाई ओवर के इंटू एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वो वैल्यू आप नहीं पुट करते तो इस तरह से भी यहाँ से ये चीज आ रही है ना, कि आप ये डी को इधर ले आए, के को उधर ले जाए, तो ये 2 डी साइन थीटा आ जाएगा। तो 2 पाई ओवर के की जगह आपको प्रीवियस ऊपर से भी पता है 2 पाई ओवर डी जो है ये के है, तो इसकी जगह यहाँ पे भी आप के पुट कर सकते हैं। यहाँ के की वैल्यू आप लगाएंगे तो फिर भी कटिंग हो गई, यहाँ पे आप पास लैम्डा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू लगाते हैं ना यहाँ पे, किसी तरह से भी वैल्यू लगाएंगे तो आप पास एन लैम्डा, तो 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये ब्रैग्स लॉ आ गया। लाउ कंडीशन आपने अप्लाई की है, लाउस, ठीक है, लाउस कंडीशन से आपने ब्रैग लॉ ले आए हैं। तो ये थी इक्वलेंस बिटवीन इक्वलेंस ऑफ ब्रैग्स लॉ एंड वैन लाउस फॉर्मुलेशन, तो ये दोनों इक्वलेंट चीजें हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इनकी मैथमेटिक्स आ गई है, इन चीज़ों को आगे हमने अप्लाई भी करना है, क्योंकि जब हम XRD पढ़ेंगे, XRD मेथड्स पढ़ेंगे, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड्स पढ़ेंगे, क्रिस्टल की डायमेंशंस, डायरेक्शंस, लैटिस पैरामीटर निकालने के लिए, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए वहां पे ये यूज होंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, दोबारा हम एक दफा इन चीज़ों को देख लेते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इसमें मोड्स को 3D के अंदर, 1D के मोड्स हमने पहले डिस्कस किए थे। तो हमने डिस्कस किया डेंसिटी ऑफ मोड्स इन 3 डायमेंशन, उसके अंदर सबसे हमने 1D के लिए भी उसका फार्मूला लिखा एनर्जी का, फिर 3D के लिए भी लिखा, प्रेडिक होता है, ट्रैवलिंग वेव की फॉर्म में सोल्यूशन प्लग किया और वहां से kx ky की वैल्यूज निकाली के स्पेस के अंदर ना। तो स्पेरिकल के स्पेस के अंदर हमने थिकनेस और उसका रेडियस देखा और नंबर ऑफ स्टेट्स निकाली के शेल के अंदर। वो जो स्टेट निकाली उन पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से इनको देख लिया और वहां से फिर एक रेंज डी ओमेगा के अंदर देखा, इंटीग्रेट कर लें या फिर वैल्यूज प्लग करके सिंप्लीफाई किया और वहां से हमने नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी पर यूनिट ओमेगा में, डिस्पर्शन रिलेशन की फॉर्म में। उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक था इसका, उसमें हमने यहाँ पे सीखा है